Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and here in this session we are going to give you an overview for English language and comprehension section for SSC CGL Tier 2. Now in this session I'm going to give you the entire analysis and the overview along with a good, or I would say a surprise that we have come up for you in the upcoming days and the sessions that we are going to have with you. Let's begin with today's session and wait till the end for the news that we have for you, the announcement that we are going to make. The very first point that I want to tell you about this, as we all know that we're talking about Tier 2, so the total number of questions for English section is 200. 200 questions आपको पूछे जाते हैं, आप सबको ध्यान से ये बात पता है, राइट? दो ही सेक्शंस होते हैं, उनमें से एक सेक्शन में आपको यहाँ होते हैं 200 क्वेश्चन. अब इन 200 क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखते हैं. भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक तरफ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर. सबसे पहला टाइप सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पूछे जाते हैं. 5 से 10 क्वेश्चंस वहां होंगे ही, कुछ सिनोनिम्स के, कुछ एंटोनिम्स के. और आपको वोकैबुलरी इसलिए अपना स्ट्रॉन्ग रखना होगा क्योंकि 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, नहीं तो मिनिमम 5 तो होंगे ही. इडियम फ्रेजेस की बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं. दूसरी बात, यहाँ पर जो नए 3 पैटर्न देखे जा रहे हैं, 3 पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं जो कि जिन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में से. इडियम्स एंड फ्रेजेस के 3 तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. मैं आपको कुछ तीनों टाइप्स एक बारी जस्ट एग्जिस्ट दे रही हूँ. सबसे पहला टाइप सिंपल इडियम लिखा है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको उस इडियम का मीनिंग बताना है. नंबर 2, एक सेंटेंस में इडियम को यूज करके अंडरलाइन कर दिया गया है, ऑप्शंस हैं, आपको मीनिंग बताना है. नंबर 3, आपको एक फिलर क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और ऑप्शन में होंगे 4 इडियम्स और आपको उनको कैसे, आपको वहां फिल इन द ब्लैंक में कौन सा इडियम फिट हो रहा है एज पर द कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग, यू हैव टू फिट इन राइट देयर. So these are 3 patterns that we have observed from the complete analysis and we are going to discuss with you in detail in coming sessions. Okay. आरसी का अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पर 5 क्वेश्चन का आरसी भी होगा और 10 क्वेश्चन का आरसी भी होगा. दोनों आरसीज आपको पूछे जाते हैं. सिंपल से इसका जो डिफिकल्टी लेवल है मैं अभी आगे आपके साथ सेशन में डिस्कस करूंगी. मैं आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भी बताऊंगी. मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो 20 से 25 क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो. मिनिमम 50, मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस तो यहाँ से यहाँ आने हैं. और पैराजंबल के 20 अगर आप मिला ले तो 80 क्वेश्चंस तो आपके रीडिंग एबिलिटी के पार्ट से ही हो गए, जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज और पैराजंबल रहेगा. सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं तो रीडिंग एबिलिटी करूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी. डोंट डू दैट, because this is one section that most of you are afraid or you fear, but this is something that can make you do wonders in the exam. So try to work on it, try, give it a try. Okay, give it a shot. You will find, see, RCs, the answer is right there in the passage. It's just that you need to locate it with bit of sense and bit of your knowledge and your attention. You have to pay heed to it. You have to have keen involvement in the passage. Alright, I'll tell you in detail about these things, like how to attempt and what the approach should be. I'll come to that also. Error spotting में 20 से 25 questions आपके आने ही आने हैं. This is again some set. See the number of questions that I have given you. Why I have said 5 to 10? Because see this number is static, somewhere in between, or some not less than 5, not more than 10. This is what I want to say. Now filler, again 5 to 7. Now filler could be based on the idioms and phrases section, as I just explained in the type 3. It could be based on that. Filler could be based on vocabulary and filler could be based on grammar concepts. You can have a preposition wala filler, you can have phrasal verb का filler, you can have any vocabulary word का filler. Context के हिसाब से 4 options में 4 difficult words हैं या कुछ सिंपल वर्ड्स हैं, बट आपको मीनिंग के अनुसार डिमांडिंग, फ्रस्ट्रेटिंग या कुछ ऐसा आपको फिल करना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर
sentence at first. Okay, so this is what I want to tell you about, like these session. If you see the types of questions here, we've almost covered at least 100 questions right here, 100 to 110 questions. So the other section that we have is again sentence improvement का part रह गया. Again maximum 25 questions आपको इस set से भी आते हैं. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं 50 क्वेश्चंस की बात करूं मोटा मोटा, तो कुछ एनालिसिस हमने किया है. वी विल शेयर इट विद यू इन द कमिंग सेशंस. मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, हाउ टू क्रैक द एग्जाम अप्रोच, सब कुछ. तो हमारे साथ बने रहिए फॉर द अपकमिंग सेशंस ऑल्सो एट पेंडुलम EDU. नाउ हियर मैं कह रही हूँ आपको 50 क्वेश्चन में जो टाइप्स जो आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. वी लेट यू नो ओके अबाउट दैट. तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनसे एरर्स आते ही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा ही जाता है. इफ यू इवन नो दैट, आपको पूरा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 50 क्वेश्चन के लिए फिर. ओके, मिस स्पेल वर्ड्स, भाई स्पेलिंग एरर सीधी सी बात है. मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, मिनिमम 2 तो होंगे ही. कभी ऐसा नहीं होगा कि मिस स्पेल वर्ड्स मिस हो गए. 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनीवेज. ओके, 2 मैक्स और 2 मिनिमम, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं. 5 से शुरू हो सकता है, 10 तक जा सकता है. सो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आपको पता है सिंपल सा पैटर्न, एक स्टेटमेंट, उसके लिए आपको ऑप्शन में से 1 वर्ड पिक करना है. यहाँ पर भी आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जाती है. अगर आपको मीनिंग्स चारों ऑप्शंस के पता है, वेल ऑफ. या तो आपको पता है कि जो ऊपर लिखा है उसको क्या कहते हैं, देन इज करेक्ट, अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम. Right, so you have to look into that. Moving ahead, next is voice section. 20 questions of voice के तय हैं. 20 तो आते ही है, 20 से कम तो होते ही नहीं है. 20 प्लस तो मैंने नहीं देखा, 20 तो है ही आपके पास. नरेशन की अगर मैं बात करूं तो 25 से 26 क्वेश्चंस आ जाते हैं. कभी कभी ये 28 तक भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. कुछ यहाँ कम बढ़ करके इनको बढ़ा दिया जाता है. ये एक मेजर सेक्शन है क्योंकि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपके वॉइस और नरेशन, एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन. तो जो मेजर टॉपिक्स हैं आप उनको पिक कर लीजिए. देखिए 20-25, 20-25, 20-25, 30, इनको पिक कर लीजिए, मास्टरी कर लीजिए. ऑटोमेटिकली आप वोकैबुलरी कह देना कि मेरा थोड़ा मिस हो जाता है, कोई बात नहीं. आपको कुछ आता है, कुछ नहीं आता, बट 200 में क्वेश्चंस में अगर 150 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो, 150 या 170, इससे अच्छी बात क्या है, सही करके आ रहे हो. मैं अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सही करने की बात कर रही हूँ. राइट, सो एट दैट मोमेंट प्रैक्टिकली बात करो. सिनोनिम 10 में से 3 नहीं आते, 4 नहीं आते, छोड़ दिए. 10 में से 3-4 नहीं आते, तो 5-6 क्वेश्चन के मैक्स 10-15 क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिए. पर जो आते हैं वो सही होने चाहिए, वो अटेम्प्ट सही होना चाहिए. 200 में से अगर 170-180 क्वेश्चन यू डू इट करेक्ट, बैंग ऑन, नो वन कैन स्टॉप यू इन इंग्लिश 10. So these are types of questions and the number of questions that are being asked. Moving ahead, if you see, now here what I want to tell you, that based on your strength, see what did you notice here? मैंने आपको एक फोकस किया रीडिंग एबिलिटी पे, एक फोकस किया मैंने वोकैबुलरी पर, जहाँ पर कि 1 वर्ड, मिसस्पेल, इडियम्स एंड एंटोनिम्स आ गए. फिर बचता है एरर, फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ये आ जाता है आपका ग्रामर सेक्शन में. तो आपके पास ओवरऑल 3 सेक्शंस हैं भाई. नंबर 1 वोकैबुलरी का सेक्शन है जिसमें कि ये 4 टॉपिक्स आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, 1 वर्ड, मिसस्पेल. आपको अपनी स्ट्रेंथ पर डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है आपको. ओके, एक सेक्शन है वोकैबुलरी का, दूसरा सेक्शन है रीडिंग एबिलिटी का. यहाँ पर 3 चीजें हैं आपने देखी, इन्वॉल्व आरसी, पैरा, जंबल, क्लोज. और तीसरा सेक्शन है ग्रामर का, जहां पर है एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर, नरेशन एंड वॉइस. ना सीधी एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इन 3 सेक्शंस में से आपको कोई भी सेक्शन जो आपको लगता है आपका स्ट्रेंथ है, देखो प्रायोरिटी सेट कर लो 1, 2, 3 ये. और अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं ग्रामर को रखूंगा, वेल ऑफ, मतलब आपके ऊपर है आपको क्या रखना है. आप GVA करना चाहते हो, VAG करना चाहते हो आपको, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. ग्रामर, वर्बल या वोकैबुलरी या फिर एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी. सो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो.
ठीक है। नाउ क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि देखिए पीछे जाते हैं, अगर मैं देखूँ यहाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप 4-5-6 क्वेश्चंस यहाँ और यहाँ से छोड़ भी देते हो इट्स फाइन, बट यहाँ जो है ये अगर आप क्वेश्चंस पूरे पूरे करते हैं तो आप मेजॉरिटी और चीजें ग्रैब कर सकते हो। तो आपको क्या बढ़ाना है, आपको अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो गया जो अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, यू हैव टू एनहांस दैट, यू हैव टू एनहांस योर एबिलिटी, योर अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रीहेंशन। लाइक आपने एक बार सेंटेंस पढ़ा, आपको पता है कि उस सेंटेंस में क्या लिखा है, टाइम वेस्ट करना ना पड़े आपको, 1 से 3 बार 4 बार 2 बार 5 बार ना पढ़ना पड़े आपको कॉन्टेक्स्ट। तो आपने एक बार पढ़ा, you could grab what is there, what is not. That is what I'm talking about. Okay, this is what I want you to note. तो 3 में से आपका जो भी फोर्टे है उसको पिक कर लीजिए, जो भी आपका फोर्टे है उसको सेट कर लीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 आपको पता होना चाहिए आप मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करके आओगे, या फिर आपको सेट एक पॉइंट के साथ जाना है कि इतने डेड श्योर मेरे अटेम्प्ट्स परफेक्ट होने ही चाहिए। See, the competitive world is huge, learners. It's huge. Okay, so if you are going to just like if you have a lame or I would say laid back attitude towards it, you would be laid back. Yet again, people would go ahead here. उसके बजाय आपको खुद आगे बढ़ना होगा कॉन्फिडेंस के साथ, आपको खुद को तय करके चलना होगा, क्योंकि ये मैं इतना करूंगा या इतना करूंगी और इतना ही करके आऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं 170 क्वेश्चन 175 क्वेश्चन सही करके आऊंगी ही। That's it, that this is the sort of confidence that you need to have. All right, moving ahead, let's go ahead next. So we are talking about difficulty level now. Next, now मैंने आपसे कहा था मैं आपको difficulty level भी बताऊंगी, पहले हम vocabulary section की difficulty level देखते हैं। Number 1 is synonyms and antonyms। इसमें आपको easy to moderate level मिलेगा, कुछ ऐसा difficult नहीं होगा। मॉडरेट का मेरा मतलब है आपको ऐसे वर्ड्स, एलियन वर्ड्स नहीं मिलेंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल रेपर्टोआ और सम अदर वर्ड्स, बट ऐसे वर्ड्स होंगे जो रिलेटेबल हैं बट इतने भी इजी नहीं होंगे। तो इजी टू मॉडरेट, आपको कुछ क्वेश्चंस इजी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा। आपको इडियम्स ऐसे देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप डिफिकल्ट तो तब कहोगे जब आपको मीनिंग नहीं आता। आप इजी से इजी इडियम को डिफिकल्ट कहोगे अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। For vocabulary, start reading, or if you have these books, like most of the people, they refer to various books. Okay, they go to the books like, for instance, they have this word power. Okay, they have other dictionaries with them. You can go. Otherwise, what you have to do, go to the daily word list that we have on the Hindu vocabulary. It's you don't have to go anywhere, because the list we share, it has synonyms, antonyms, it has all the words that the word of the day we give you. Again, we give you synonyms, antonyms. So go look for the practice vocabulary from there. Why not? Why to go somewhere else? Apart from that, do read. Like, I hope and believe that you do. Okay, you read every day. If you want to crack competitive exam, you have to have this habit of reading. Moving ahead, next is one word substitutions, which is moderate to difficult. Okay, यहाँ पर आपको difficult level भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। मिसस्पेल वर्ड्स इजी टू मॉडरेट होते हैं, आपको गलत स्पेलिंग पिक करनी है। अच्छा, यहाँ पर पुराना पैटर्न था कि एक स्पेलिंग को 4 तरीके से लिख दिया, यहाँ नया पैटर्न में 4 अलग स्पेलिंग्स होंगी। ओके, उनमें से कोई भी एक गलत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग एबिलिटी। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। इजी आप तब कह सकते हो अगर कोई स्टोरी बेस्ड पैसेज है या कुछ ऐसा है, तो वो आप उसे इजी भी कह सकते हैं टू एन एक्सटेंट दैट वोंट बी मच ऑफ रश फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो क्लोज पैसेज होगा,
अच्छा, क्लोज पैसेज भी 5 क्वेश्चंस का भी होता है और 10 क्वेश्चंस का भी आता है। तो जैसे इजी का मतलब हुआ कि अगर एक स्टोरी बेस्ड है या जिसमें सिंपल टेंस का पता है आपको, पास्ट टेंस में स्टोरी चल रही है, पास्ट वर्ब ही आएगा, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आपको पता है कि जो पैटर्न चल रहा है इसमें मैंने पहले यूज किया है आईएनजी फॉर्म, तो आगे भी आईएनजी फॉर्म आएगा। सो इफ यू नो दिस काइंड ऑफ, सो ये एक इजी लेवल में आ जाएगा। मॉडरेट और डिफिकल्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को मायने ध्यान देना होगा। उसके बाद कुछ फ्रेजेस होते हैं उनके बेस्ड पर, उन पर अगर बेस्ड फिलर्स हैं तो वो आपको ध्यान रखने होंगे। सो वो मॉडरेट एंड डिफिकल्ट भी कंपाइल फिर कर लेगा। ओके, देन आता है पैराजंबल। ये तीनों लेवल्स के होते हैं, इनमें आपको इजी भी मिल जाएंगे क्योंकि छोटे पैराग्राफ्स भी आते हैं। वैसे पैराजंबल के लिए आपको बहुत लेंथी पैराग्राफ देखने के लिए बहुत रेयर मिलेंगे सिस्टम, बहुत ही रेयर। मैक्सिमम आपको एक सेंटेंस, या जो कहते हैं ना एक सेंटेंस मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक गया, ऐसे मिलेंगे। या फिर मैक्स आपको 1.5 सेंटेंस का एक सेंटेंस मिलेगा। ये एक सेंटेंस की लेंथ होती है, इतनी मैक्सिमम लेंथ होती है। तो मैं आपको कह रही हूँ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तीनों लेवल्स में आपको पैराजंबल का क्वेश्चन मिल सकता है। अब यहाँ पर जो कहते हैं, सॉरी, जो टॉपिक्स होती हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं तीनों के लिए। ओके, साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, पॉलिटी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है। Alright, it can be if I talk about this socio-economic issues हो सकते हैं। ठीक है, कोई अगर नैरेटिव है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बता दिया या कोई और पर्सनालिटी के बारे में बात कर ली, so वो नैरेटिव हो सकता है। So these can be the टाइप्स ऑफ पैसेजेस जो आरसी, क्लोज और पैराजंबल में आपको पूछ लिया जाता है। स्टोरी बेस्ड भी होते हैं, नो डाउट स्टोरी बेस्ड भी एसएससी में आते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट तीनों लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर में अगर आप देखते हैं तो एक तो फिलर, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, आपको फिलर मैंने कहा क्वेश्चन या तो ग्रामर बेस्ड होगा या वोकैबुलरी का होगा। अब जो थर्ड आ गया है वो ईडीएम बेस्ड फिलर्स आने लगे हैं, तो वो भी आ सकता है। आपको 4 ऑप्शंस में 4 ईडीएम्स दिए होंगे, तो आपको वो ईडीएम्स के मीनिंग अगर पता है तो आप कॉन्टेक्स्ट के अनुसार फिलर में फिट कर सकते हैं उसको। ग्रामर बेस का मतलब हो गया कि प्रेपोजिशन पर एरर आ गई, या टेंस पर एरर आ गई, या मॉडल वर्ब्स पर आ गई, एनीथिंग, नाउन, प्रोनाउन, एनी सॉर्ट ऑफ एरर, तो वो ग्रामर बेस्ड हो गया। वोकैबुलरी हो गया कि भाई कोई वहां पर कोई पर्टिकुलर वर्ड फिट होना है, सो उस वर्ड को आपको ऑप्शन में से पिक करना होगा कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा वर्ड वहां पर फिट हो सकता है या होगा। दैट्स अगेन नेक्स्ट पार्ट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ग्रामर में अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्रामर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जाते हैं। सो अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर स्पॉटिंग का बात करूं, यहाँ पर रहा एरर स्पॉटिंग, तो यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं। ठीक है, ग्रामर से, बिकॉज एरर स्पॉटिंग का मतलब हुआ उन्होंने वहां पे वो गलत कर दिया, आपको गलती सिर्फ बतानी है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में गलती के साथ आपको सही बताना है, गलती भी पहचाननी है और सही आंसर भी बताना है। सो मोर और लेस सेम ही, आपको गलती ही स्पॉट करनी है, बट जो टॉपिक्स होते हैं तो वो तो सेम ही होंगे ना ग्रामर में से। अगर हो सकता है वहाँ वर्ब की एरर हो सकता है, नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, प्रेपोजिशन का हो, फ्रेजेस का हो, कॉलोकेशन हो। मैं कॉलोकेशन भी आपको समझाऊंगी, I'll discuss it with you about the collocation also because that is one topic जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट कंपेटिटिव एग्जाम्स में उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन है। सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग, वॉइस और नरेशन मैंने आपको बताया, ये 50 क्वेश्चन कंप्राइज कर लेते हैं दोनों मिलकर। अगर मैं नरेशन और वॉइस की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन दोनों के बन जाते हैं टोटल। सो वॉइस नरेशन में आपको फोकस करना होता है ऑप्शंस पर। आपको पूरे सेंटेंसेस पढ़ के, पूरे ऑप्शंस पढ़ के आंसर नहीं देना है, आपको ऑप्शंस पर फोकस करना है। जो पार्ट, जिस पार्ट में चेंज करना है उस पर फिर फोकस करना है, उस पार्ट का चेंज नेक्स्ट में हुआ है कि नहीं वो देखना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है, ये टेक्निक अपनानी है आपको। दैट इज द बेस्ट टेक्निक एवर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर वॉइस एंड नरेशन।
ओके, दैट एक्सीडिंगली इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अगर आप वॉइस नरेशन में जो लंबे लंबे सेंटेंसेस अगर पढ़ते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है जिस पार्ट में चेंज होना है वो ही चेंज आप नेक्स्ट ऑप्शंस में क्विकली देख लीजिए, जिसमें नहीं है उनको एलिमिनेट करते जाइए। लास्ट में जो सेंटेंस बचेगा उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए एंड दैट्स इट। ये नहीं कि सारे सेंटेंसेस पूरे पूरे पढ़ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, इससे टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ नहीं। टू सेव टाइम, ऑप्शंस प्लस एलिमिनेशन ये आपको अपनाना है। ऑप्शंस प्लस एलिमिनेशन ये टेक्निक आपको अपनानी है इन टर्म्स ऑफ वॉइस एंड नरेशन। That's the major important point that I'm talking about. Okay, so this is, so I said grammar and vocabulary. I guess I have discussed it with you. Yes, I discussed the difficulty level for grammar, vocabulary and reading ability. तो मैंने आपको बताया अभी तक कि ओवरऑल जिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उनका डिविजन क्या है, भाई कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, प्लस जो डिफिकल्टी लेवल होता है उनका हमने अभी तक वो डिस्कस किया है। ऑलराइट, moving ahead. Now I have, as I said, that I have a news for you guys. So what is the news that I have for you guys is this, that Pendulum EDU, that is we are coming up with a crash course for SSC CGL Tier 2 for you all. So yes, bang on learners, we are here with a crash course for you ताकि आप एग्जाम तक prepared हो जाएं। That is going to be really important for you for this year. So the crash course, मैं आपको समझाती हूँ कि crash course से हमारा क्या मतलब है। कम समय में ज़्यादा तैयारी कराना, एनालिसिस करना हमारा काम है, आपका नहीं। हम आप तक वो एनालिसिस के जरिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप तक हम पहुँचाएंगे अब, राइट। तो दैट इज आवर मोटिव एंड हमारा मोटिव है आपको हेल्प करना और एग्जाम क्रैक कराना। ना तो एग्जाम क्रैक करने के लिए जो की फीचर्स हैं इस क्रैश कोर्स के वो ये हैं। नंबर 1 जो कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मेरा मतलब है हम आपको सारा ग्रामर और सारी चीजें नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो हमने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर्स के सेट्स में देख के अब तक के, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिपीटेटिवली पूछा जाता है, क्या पैटर्न नया है, क्या पुराना, वो सब हम आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे और उनके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे। नंबर 2 प्रीवियस ईयर एनालिसिस बेस्ड सेशंस हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि भाई एसएससी का पैटर्न क्या है। एसएससी का पैटर्न आप सबको पता है कि रिपीटेटिव होता है मेनी टाइम्स। कुछ चेंजेस आते हैं पैटर्न में बट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं। सो वी आर गोइंग टू focus on that. Not just that, I mean that we have analyzed, we have made an analysis for it. So we on the basis of that analysis, we are going to help you out now in English, because English is something that most of you juggle with. Like n number of people come to us and they keep on asking us that why can't we do English, like maths हमारा इतना अच्छा है पर हम इंग्लिश में रह जाते हैं, रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल होता है, जीएस हम रट लेते हैं पर इंग्लिश हम नहीं कर पाते। सो दिस इज द पॉइंट। आपको इंग्लिश में ग्रामर नहीं पढ़ना पसंद, मत पढ़ो, हम आपको ग्रामर नहीं पूरा ग्रामर नहीं पढ़ा रहे। देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पूरा ग्रामर हम आपको नहीं पढ़ा रहे, बट we are going to give you the tips and the concepts that are the most important ones for your exam. All right, apart from this भाई concepts हो गए, previous year के भी analysis पर बेस सब कुछ हो गया। इसके बाद different और new pattern जो है हर कैटेगरी में वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ भी जो नया तरीके से पूछा जाने लगा है, जो नए तरीके से आ रहा है, नया पैटर्न है या नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो आपको इन डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस we're going to give you practice questions for that as well. So अगर आपको हम इतना सब comprehensive way में बता रहे हैं, इतनी बारीकी से सब आपको बता रहे हैं, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय प्रैक्टिस के। इसके बाद आते हैं टॉप 100 idioms और वन वर्ड्स आपको मिलेंगे जो CGL में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं या जो बार आते हैं। तो टॉप 100 idioms और टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी, भाई क्योंकि ये एक पॉइंट है या ये एक टॉपिक है जो कि मैंने देखा है कि आप सब
बहुत बहुत स्ट्रगल करते हो इसको करने में कि भाई ये कैसे रिजॉल्व करें हम, या ये कैसे करें, वोकैबुलरी नहीं याद होती, इतने सारे वर्ड्स कहाँ से करें। सो हम एक बहुत ही यूनिक तरीका लेकर आए हैं आपको वोकैबुलरी कराने का, और आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल नया और डिफरेंट तरीका है। वी आर गोइंग टू डू द वोकैबुलरी, वी आर गोइंग टू डू वोकैबुलरी विद दिस पर्टिकुलर वे। ये आपको आने वाले समय में क्रैश कोर्स में पता चलेगा। ओके, एंड यू विल नो कि भाई वोकैबुलरी कितने इजी तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको हर शब्द की मीनिंग रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कैसे आप एक शब्द से बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस अब सो फार आप देख रहे हो 5 पॉइंट्स मैंने बताए, और 5 के 5 पॉइंट्स आपके लिए एकदम रेलेवेंट है। एक पॉइंट जो है वो आपके लिए ही बनाया गया है। सो लाइक आई वुड सजेस्ट like get on, like put on your socks, like, right, pull your socks up. The test series that we have to practice, जो पेंडुलम EDU आपको दे रहा है, हम अपनी तरफ से आपको टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें आपके पास 10 मॉक्स है इंग्लिश में और एक मेगा मॉक है। ओके, ये जो 10 मॉक्स है इंग्लिश में जो हम आपको दे रहे हैं, इनमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एनालिसिस बेस्ड हैं। इसके साथ साथ जो पैटर्न है वो भी वैसा ही है। मेगा मॉक जो आपको रहेगा वो आपके लिए बैंग ऑन एक मॉक रहेगा, विच विल बी, वो आपको 10 मॉक्स का एक जो होता है ना कि अच्छा आपने 10 मॉक्स के बाद आप इस मॉक को कर रहे हो तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, ये डिफिकल्टी लेवल भी उसका थोड़ा एनहांस्ड होगा। सिमिलरली क्वांट में आपके पास 10 मॉक हैं और एक मेगा मॉक होगा, सिमिलर चीज है यहाँ पर भी, और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपके पास फिर हैं ही हमारी तरफ से। सो ये चीजें जो है कंपाइल करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और ये क्रैश कोर्स जो है ये हम आपके साथ वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, और ये जो सेशंस हैं ये रेगुलरली यहीं हमारे यूट्यूब चैनल पर होंगे। सो डोंट मिस एनी सेशन। सो आप बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर आपने नहीं किया है, ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करें और रेगुलरली हमारे साथ बने रहे, राइट। सो दिस इज फॉर योर बेनिफिट फॉर आवर्स। हम आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप ट्रेन होना चाहते हैं। सो एनीवे यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर बट हियर, एंड आपको जितना कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस के लिए आप वो पेंडुलम EDU की साइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन आवर करंट अफेयर्स, यू वांट GS, यू वांट क्वांट, यू वांट इंग्लिश, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज राइट देयर। गो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हियर ऑन द यूट्यूब चैनल फॉर लर्न एंड ग्रोइंग। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लर्नर्स, जो मॉक सीरीज आप देख रहे हैं, जो 3 मॉक सीरीज हैं SSC CGL के लिए, आप उन पर 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं राइट अवे। तीनों में आप अवेल कर सकते हैं। आपको ये कोड यूज करना है पेंडुलम EDU इन कैपिटल। आप इस कोड को यूज कीजिए अभी, अगर आप मॉक सीरीज को परचेज कीजिए, और 10% डिस्काउंट आप वहां पे अवेल कर सकते हैं इजीली। सो गो गेट द सीरीज एंड स्टार्ट विद द क्रैश कोर्स विद अस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे, so buck up, right? We're going to start from tomorrow, so do not miss it. All right, so I am going to I'm going to be there with you to resolve your issues and problems right there without any points. You can comment and let us know your doubts that you have, if any. If you wish we need to cover something specific apart from this, let us know your demands. We are going to fulfill it. So I'll catch up with you in the next session, and till then keep learning and growing. Not to forget to hit the like button to the video. Also subscribe to the channel for more sessions with us, for the upcoming crash course with us. Thank you so much.